ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ AutoCAD ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਲੈਫਟ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਟਨਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਟਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਟਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਜਾਂ ਰੀਡੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੇਮ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਰਚ ਬਾਰ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ AutoCAD ਹੈਲਪ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ ਮੈਨੂਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ AutoCAD ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊ, ਓਪਨ, ਸੇਵ, ਪਲਾਟ ਐਟਸੈਟਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਿਟ ਮੈਨੂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਟ, ਕਾਪੀ, ਪੇਸਟ ਐਟਸੈਟਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ AutoCAD ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੂਮ, ਪੈਨ, ਆਬਜੈਕਟ ਐਟਸੈਟਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸਰਟ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੌਕ ਐਟਸੈਟਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਸਟਾਈਲ, ਲੇਅਰਸ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ, ਮਲਟੀਲੇਟਰ ਸਟਾਈਲ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਟੂਲਸ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਦੈਨ ਡਰਾਅ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ ਟੂਲ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਨ, ਆਰਕ, ਸਰਕਲ, ਟੇਬਲ ਐਟਸੈਟਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ, ਅਲਾਈਨ, ਬੇਸ ਲਾਈਨ, ਮਲਟੀਲੀਟਰ ਐਟਸੈਟਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਡੀਫਾਈ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੈਚ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਪੀ, ਮਿਰਰ, ਆਫਸੈਟ, ਐਰੇ ਐਟਸੈਟਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੰਡੋ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਪ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ AutoCAD ਹੈਲਪ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟੂਲ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੌਕਸ, ਲੇਅਰ ਟੂਲਸ ਐਟਸੈਟਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਰੋ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਕਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੂਲ ਬਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂਲ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਨਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਨਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਨਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪੈਨਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਸ 'ਚ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਨਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ AutoCAD ਉੱਪਰ ਕਰਸਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਨਲਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕ ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨਲਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੈਨਲ ਇੰਟਰਫੇਸ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਸਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੈਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ AutoCAD ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ AutoCAD ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਐਂਡ ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਗਿਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ AutoCAD ਦੀ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਟਨਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਮੋਡਸ ਦੇ ਬਟਨ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਮੋਡ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਵਿਚ ਔਨ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਮੋਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਨੈਪ, ਗ੍ਰਿਡ, ਆਰਥੋ, ਪੋਲਰ ਓ ਸਨੈਪ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਮੋਡ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੋਡ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ AutoCAD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
पहला मैथड है इन्हां पुल डाउन मेनू ते क्लिक करके उस कमांड ਨੂੰ एक्सेस कर सकते हो। दूसरा मैथड तुसीं इन्हां स्टैंडर्ड टूल बार ਜਾਂ इन्हां पैनल्स के उपर इन्हां टूल के उपर डायरैक्टली क्लिक करके भी उस कमांड ਨੂੰ रन कर सकते हो। एंड थर्ड मैथड तुसीं उस कमांड ਨੂੰ इस कमांड लाइन ਵਿੱਚ टाइप करके उस कमांड ਨੂੰ रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, जिमें कि अगर असीं लाइन कमांड ਨੂੰ रन करना हो उसके लिए पहले मैथड के अकॉर्डिंग तुसीं ड्रॉ मेनू ते जाके लाइन कमांड ते क्लिक करके लाइन कमांड ਨੂੰ रन कर सकते हो। दैन सैकेंड मैथड के अकॉर्डिंग तुसीं इस टूल पैनल ते जाके इस लाइन टूल के उपर क्लिक करके भी लाइन कमांड ਨੂੰ रन कर सकते हो। एंड फॉर थर्ड मैथड अगर तुसीं लाइन कमांड रन करना चाहते हो तो लाइन कमांड लाइन में लाइन टाइप करो एंड एंटर बटन प्रेस करो, तुसीं देखोगे लाइन कमांड रन हो जाएगी। सो आल्सो डिफरेंट कमांड्स के शॉर्टकट कीज़ भी होंगे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन कमांड का शॉर्टकट की L है। सो कमांड लाइन में कंप्लीट लाइन लिखने की बजाय अगर तुसीं सिंपल L लिखते हो एंड दैन एंटर बटन पर क्लिक करते हो, तुसीं देखोगे लाइन कमांड रन हो जाएगी। सो अगर तुसीं डिफरेंट कमांड्स के शॉर्टकट की जानते हो तो कमांड लाइन में डायरेक्टली शॉर्टकट की एंटर करके तुसीं कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर तुहानूं उन्हां दी शॉर्टकट कीज़ नहीं पता तो तुसीं कमांड का कंप्लीट नाम टाइप करके भी उस कमांड ਨੂੰ रन कर सकते हो। जब भी हम ऑटोकैड रन करते हैं तो सबसे पहले ये इंटरफेस अपीयर होता है। इस इंटरफेस में डिफरेंट एरियाज़ हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। इन बटन्स को एप्लीकेशन बटन्स कहा जाता है। सो फॉर एग्जांपल इस बटन की मदद से आप एक नई ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। इस बटन पे क्लिक करके आप किसी एग्जिस्टिंग ड्राइंग को ओपन कर सकते हो। इस बटन पे क्लिक करके आप किसी ड्राइंग को सेव कर सकते हो। इस बटन पे क्लिक करके आप किसी ड्राइंग को प्लॉट कर सकते हो। एंड इन दोनों बटन्स की मदद से आप किसी एक्शन को अनडू या रीडू कर सकते हो। इस एरिया को फाइल नेम एरिया कहा जाता है, जिसमें एक करंट ड्राइंग का नाम डिस्प्ले होता है। इस एरिया को सर्च बार एरिया कहा जाता है। किसी ड्राइंग में अगर किसी टेक्स्ट की सर्च करनी हो या फिर अगर आपने ऑटोकैड हेल्प की सर्च करनी हो तो उसके लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करके इस बटन पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर कंटेंट्स की सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट रो में डिफरेंट पुल डाउन मेनूज अवेलेबल हैं, जिस पे आप क्लिक करके ऑटोकैड की डिफरेंट कमांड्स को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि फाइल मेनू पे क्लिक करके डिफरेंट कमांड्स लाइक न्यू, ओपन, सेव, प्लॉट एक्सेट्रा एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह एडिट मेनू पे क्लिक करके डिफरेंट कमांड्स लाइक कट, कॉपी, पेस्ट एक्सेट्रा एक्सेस कर सकते हो। व्यू मेनू में ऑटोकैड की डिस्प्ले को कंट्रोल करने की कमांड्स लाइक जूम, पैन, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एक्सेस कर सकते हो। देन इंसर्ट मेनू पे डिफरेंट कमांड्स लाइक ब्लॉक्स एक्सेट्रा एक्सेस कर सकते हो। देन फॉर्मेट मेनू में डिफरेंट फॉर्मेट सेटिंग्स की कमांड्स लाइक लेयर, टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, मल्टीलेटर स्टाइल को एक्सेस कर सकते हो। टूल्स मेनू में इंटरफेस सेटिंग की कमांड्स लाइक ड्राफ्टिंग सेटिंग, ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो। ड्रॉ मेनू में डिफरेंट ड्राफ्टिंग टूल्स की कमांड्स लाइक लाइन, रे, आर्क, सर्कल एक्सेट्रा एक्सेस कर सकते हो। इन कमांड्स की मदद से आप डिफरेंट स्केच क्रिएट कर सकते हो। दैन डायमेंशन मेनू में आप डिफरेंट एनोटेशंस की कमांड्स लाइक लीनियर, रेडियस, बेसलाइन, मल्टीलीटर एक्सेट्रा को एक्सेस कर सकते हो। सो इन कमांड्स की मदद से आप किसी ड्राइंग की एनोटेशंस कर सकते हो। मॉडिफाई मेनू में आप डिफरेंट कमांड्स लाइक मिरर, ऑफसेट, एरे एक्सेट्रा एक्सेस कर सकते हो। इन कमांड्स की मदद से आप किसी स्केच को मॉडिफाई कर सकते हो। विंडोज़ मेनू में आप डिफरेंट विंडोज़ को ऑर्गेनाइज करने की कमांड एक्सेस कर सकते हो। हेल्प मेनू में आप ऑटोकैड हेल्प की कमांड एक्सेस कर सकते हो। दैन एक्सप्रेस मेनू में डिफरेंट एक्सप्रेस टूल्स की कमांड लाइक ब्लॉक्स, लेआउट टूल्स के एक्सेस कर सकते हो। दैन थर्ड रो में डिफरेंट आइकॉन्स अवेलेबल हैं। इन आइकॉन्स को टूल्स भी कहा जाता है। सो ये बार जिसमें ये डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं या फिर इसको स्टैंडर्ड टूल बार भी कहा जाता है। इन डिफरेंट टूल्स की कलेक्शन को पैनल्स कहते हैं। जैसे कि ये डिफरेंट पैनल्स आप इंटरफेस में देख रहे हो। आप इन पैनल्स को इंटरफेस से रिमूव भी कर सकते हो या फिर किसी नए पैनल को इंटरफेस में ऐड भी कर सकते हो। इन डिफरेंट पैनल्स को ऐड या रिमूव करने के लिए इस एरिया पे राइट क्लिक करें एंड ये फर्स्ट ऑप्शन ऑटोकैड पे कर्सर आते ही आप देखो एक लिस्ट खुलेगी जिसमें डिफरेंट पैनल्स नज़र आ रहे हैं। सो जो पैनल ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरफेस पे उनके सामने ये मार्क लगा हुआ है। सो अगर आप इसको डिसलेक्ट कर लेते हो तो आप देखो ये पैनल इंटरफेस से रिमूव हो जाएंगे। इन केस अगर आपने कोई नया पैनल ऐड करना है तो उस पैनल को सिलेक्ट कर सकते हो।
फॉर एग्जांपल अगर हमने इंक्वायरी पैनल ऐड करना है तो इंक्वायरी पे क्लिक करें, आप देखो ये नया पैनल ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इसको रिमूव करना है तो उसके लिए आप इसको डिसलेक्ट कर सकते हो। सो देन इसके बाद इस एरिया को वर्किंग एरिया कहा जाता है, जिसमें आप कोई भी स्केच या कोई ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। इस एरिया को कमांड लाइन एरिया कहा जाता है, जिसमें आप कोई भी कमांड टाइप कर सकते हो। एंड ऑल्सो ऑटोकैड इस एरिया में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। सो डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप किसी कमांड में काम कर रहे हो तो ऑटोकैड उस कमांड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा कि आप किस स्टेप पे काम कर रहे हो एंड इस कमांड को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपको फर्दर कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए। सो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल एरिया है, सो दैट वो ऑटोकैड की इस इंफॉर्मेशन से हेल्प लेके किसी कमांड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। देन इसके बाद इस एरिया को स्टेटस बार एरिया कहा जाता है। सो यहाँ पे ये डिफरेंट बटन्स हैं, जैसे कि स्नैप, क्रिएट, ऑर्थो, पोलरो, स्नैप, डायनामिक एक्सेट्रा। सो ये डिफरेंट ड्राफ्टिंग मोड्स के बटन है। सो आप डिफरेंट ड्राफ्टिंग मोड्स को स्विच ऑन या स्विच ऑफ इन बटन से कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर स्नैप मोड को स्विच ऑन करना है तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करोगे, सो ये हाईलाइट हो जाएगा, इट मीन्स आप अभी स्नैप मोड में काम कर रहे हो। सो इसलिए आपको इसको स्विच ऑफ करने के लिए एक बार दोबारा क्लिक करने पे उस ड्राफ्टिंग मोड को स्विच ऑफ कर सकते हो। इसके बाद एक बात और बताना चाहूँगा कि ऑटोकैड में डिफरेंट कमांड्स को रन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि आप इन पुल डाउन मेनू से भी क्लिक करके उन कमांड को एक्सेस कर सकते हो। देन सेकंड मेथड इज़ कि आप इन पैनल से या क्विक एक्सेस टूल बार से डायरेक्टली टूल के ऊपर क्लिक करके भी उस कमांड को रन कर सकते हो। एंड थर्ड मेथड इज़ कि आप कमांड लाइन में उस कमांड का नाम टाइप करके उस कमांड को रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने लाइन कमांड रन करनी हो तो उसके लिए पहले मेथड के अकॉर्डिंग ड्रॉ मेनू पे जाके लाइन कमांड पे क्लिक करें, आप देखोगे लाइन कमांड रन हो जाएगी। सेकंड मेथड, अगर आप डायरेक्टली इस टूल पे क्लिक करते हो तो इस टूल पे क्लिक करने से भी आप लाइन कमांड को रन कर सकते हो। एंड थर्ड मेथड में कमांड लाइन में आप इसका नाम टाइप करें, सो लाइन कमांड का नाम लाइन टाइप करें एंड देन एंटर बटन पे क्लिक करें, आप देखोगे लाइन कमांड रन हो जाएगी। ऑल्सो डिफरेंट कमांड्स के शॉर्टकट कीज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन कमांड का शॉर्टकट की एल होता है, सो आप जस्ट एल टाइप करें एंड एंटर बटन पे क्लिक करें, आप देखोगे लाइन कमांड रन हो जाएगी। सो इन केस अगर आप डिफरेंट कमांड के शॉर्टकट कीज जानते हो तो कमांड लाइन में पूरा नाम लिखने के बजाय उसका शॉर्टकट की टाइप करके एंटर बटन पे क्लिक करें तो आप उस कमांड को रन कर सकते हो। अगर आपको उसका शॉर्टकट की नहीं पता तो आप उस कमांड का कंप्लीट नाम टाइप करके भी उस कमांड को रन कर सकते हो।